Assalamu alaikum everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SU used to conduct sessions on different aspects, whether it's educational opportunities, career counseling, motivation, and other related stuff. Today's session is quite related to this. I hope most of the participants are students, so we feel difficulty in managing learning new skills and pursuing a degree. So today's session is how to manage simultaneously pursuing degree and skills. And today we have our guest, Miss Hafsa. Go ahead. Welcome, Miss Hafsa. She is an industrial and manufacturing engineer graduate from NED, currently working as industrial executive at Dimensions Office. She is going to guide you today related the topic. So it's over to you, Miss Hafsa. Thank you so much, Karan. So, hello everyone. Assalamu alaikum. This is Hafsa Wahid. Hope you all are doing good. So, let's move towards the thing that we are going to learn today, for which we have been gathered here. So, the thing that we will be discussing today is how can you simultaneously pursue your professional degree and your skills? How can we do that practically? लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने एक प्रोफेशनल अपनी कोई डिग्री चूज कर ली होती है, वेदर दे आर डूइंग बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, वेदर दे आर डूइंग इंजीनियरिंग डिग्री और एनी स्पेसिफिक डिग्री, और उसके साथ साथ उनके पास कोई साइड स्किल्स भी होती हैं, बट वो साइड पे पड़े हुए वेस्ट हो रही होती हैं, एंड वी डू नॉट फोकस ऑन द स्किल्स. और इफ वी आर परसुइंग द स्किल्स तो फिर हमारी डिग्री जो है उसको लेने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो हमारी डिग्री से रिलेटेड हम कोई जॉब नहीं कर रहे होते, हम आगे कोई अपना फ्यूचर परसू नहीं कर रहे होते. और इस तरीके से दोनों चीजों में से कोई एक चीज जो हमारे पास, जो स्किल सेट हमारे पास होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. So today we will try to make this session not a lecture. I will encourage you all कि आप लोग two-way communication रखें, questions करें, interrupt करें, बिल्कुल interrupt करें, और साथ साथ communicate करते रहें, ताकि end में हम लोग Q&A का time रखेंगे, but अगर साथ साथ बातचीत होती रहेगी तो ये lecture नहीं लगेगा. तो फिर ये एक lecture नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि we are communicating. So what we will be doing today is, first of all, I'll give you all my brief introduction, that who am I, what do I do. Then after that, we'll move towards the first part of our lecture or first part of our session or communication, that is importance of degree. Like for example, if you people say that skills से हम इतना पैसा कमा सकते हैं या skills से हम इतना अच्छा future बना सकते हैं, तो then why degree? So first we will discuss about the importance of a professional degree. Then we will move towards the second part, that is the skills. So then we will move towards the importance of side skills, like instead of pursuing one thing, how can you pursue two things and why should you do that? We will be discussing that. So जब डिग्री की भी इम्पोर्टेंस हम सीख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, और स्किल्स की भी इम्पोर्टेंस हमारे माइंड में आ जाएगी एक साथ, तो फिर क्वेश्चन आता है कि वाई बोथ? इफ डिग्री इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड स्किल्स ऑल्सो हैव सम इम्पोर्टेंस इन दैट, देन वाई बोथ? कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब यू शुड थिंक कि आप ये दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना चाहिए आप लोगों को, या ये दोनों चीजों को आप लोग एक साथ लेके चल सकते हैं? सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. आफ्टर दैट, हाउ कैन वी इफेक्टिवली यूटिलाइज दीज टू थिंग्स? डिग्री भी ले ली, स्किल्स भी सीख ली, अब उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है इफेक्टिवली, हम उस पर बात करेंगे. देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट विल बी मैनेजमेंट. इसमें बेसिकली मेजर पार्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हम दोनों चीजें हमने सीख ली, उसको हमने ये भी सीख लिया कि हम उसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किन वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम उस चीज को मैनेज कैसे करें. जैसे हमें पता है कि हमें ये चीजों के थ्रू हम अपनी डिग्री और स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ हमें और किन चीजों का ख्याल रखना है. थोड़ा बहुत आई डिस्कस कि हम दोनों चीजों से जो अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग को किस तरीके से हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. तो ये पूरा ब्रेकअप जो है वो हम मैनेजमेंट के टैब में एंड में डिस्कस. सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. आई एम एन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर. आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी. मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री एनईडी यूनिवर्सिटी से ली इन 2023. आई एम 23 years old right now. And how I'm utilizing my degree? I'm utilizing my degree by pursuing it as senior industrial executive at Dimensions Office.
So Dimensions Office is basically a company where we have different industrial engineers and different sort of engineers. So I do the project management work or industrial engineering work, particular course, not from any particular course, but I have learned digital marketing from YouTube. Just by seeing some videos and some stuff, I've learned digital marketing as well. But the skills that I truly gained from a complete course is of graphic designing. So how I am utilizing that, I'm serving my services as graphic designing and digital marketing expert at UTech Digital Education. So let's move towards our first topic, that is importance of degree. तो आप लोगों में से अगर मुझे कोई बता सके कि व्हाट डू यू पीपल थिंक कि हाउ मच इम्पोर्टेंट अ डिग्री इज, आप लोगों के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल डिग्री होना कितना जरूरी है? एनीवन? कोई कोई भी? अच्छा, इफ नॉट इम्पोर्टेंस देन व्हाट डू यू पीपल थिंक अ प्रोफेशनल डिग्री इज? या अगर वो भी नहीं तो अपनी, आप लोग जो भी डिग्री अपने परस्यू कर रहे हैं, जस्ट अ लिटिल डिग्री नेम कि ये जो चीज है इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ एज अ प्रोफेशनल डिग्री दैट आई एम परसुइंग. यस प्लीज, the one that raised the hand. Ma'am, I think the importance of degree is मतलब degree is very important because कोई भी डिग्री हो, अगर हम एजुकेशन की बीएड की डिग्री ले लें फॉर सपोज, तो मतलब डिग्री हमें एज ए स्किल सिखाती है. मतलब डिग्री के अंदर हम लोग उस वो जो एक जाहिर है हमें एक जॉब करनी होगी, ठीक है, आगे जाकर इस डिग्री को लेकर. तो उस जॉब के बारे में हमें सब कुछ वो डिग्री ही सिखाती है, उसके उससे रिलेटेड स्किल्स और वो सब हमें डिग्री ही सिखाती है. तो इस हिसाब से डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जॉब के लिए. Yes, exactly. Thank you so much for participating. So, degree is something, अगर हम लोग सिर्फ जॉब की पर्सपेक्टिव से भी आगे सोचें तो डिग्री इज समथिंग जो कि हमारे पास होना बहुत जरूरी है टू डू अ प्रोफेशनल जॉब. अगर हमें किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो हमें पहले उसके लिए अपनी एक कोई डिग्री चाहिए. तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंस हैं डिग्री की, जिसमें सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर हमारे पास कोई स्किल है लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है हमारे पास उस चीज उस स्किल से रिलेटेड, तो हम उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज को गेन नहीं कर पाते और उतना बेटर हम लोग अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स गेन नहीं कर पाते. तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास डिग्री की इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारे पास डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज्यादा अच्छी टीचिंग करती हूँ लेट से, और मैं किसी स्कूल में जाती हूँ और वहां जाके मैं बोलती हूँ कि मुझे मैट्रिक क्लास की इंग्लिश पढ़ानी है. तो फर्स्ट थिंग दे विल आस्क मी अबाउट माई एजुकेशन, एंड इफ आई से टू देम कि नहीं मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और मैंने बहुत सारी जगहों से अपनी इंग्लिश सीखी है, बट आई डू नॉट हैव एनी ट्रांसक्रिप्ट, आई डू नॉट हैव एनी डिग्री, आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी पर्टिकुलर कोर्स अबाउट दैट, तो दे विल डाउट मी. हो सकता है बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझे अपॉर्चुनिटी भी ना दें कि मैं इंटरव्यू या डेमो में अपेयर हो सकूं. बट इफ आई गो समवेयर, आई शो देम माई CV जिसमें मेरी डिग्री मेंशन होगी कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो देन दे विल डू द प्रोसेस स्पीड अप और फिर वो लोग मुझे मेरी डिग्री के हिसाब से ही पोजीशन ऑफर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और मैं जाती हूँ किसी स्कूल में पढ़ाने, तो दे विल असाइन मी द क्लास ऑफ मॉन्टेसरी और प्रेप क्लासेस. बट उसी की जगह अगर मैं एक मास्टर्स डिग्री लेके जाती हूँ कहीं पे, तो बिफोर टेकिंग माई डेमो जो फर्स्ट थिंग उनके माइंड में आएगी वो यही आएगी कि वो मुझे हायर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए असाइन करेंगे. सो डिग्री से ऑटोमेटिकली आपके जो अर्निंग पोटेंशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास डिग्री की वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ स्किल सीख ली और अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलूं तो मुझे मेरी इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा ग्रामर आता है, और मैं एक स्कूल गई, उन्हें मैंने बताया कि मेरे पास स्किल्स नहीं है बट आई हैव मेरे पास डिग्री नहीं है बट आई हैव गुड स्किल्स, और मुझे आप लोग जो है वो मैट्रिक क्लास दे दें. और उन्होंने मेरा डायरेक्ट एक डेमो कंडक्ट करवाया बाय चांस, और मेरा वहां पे हो गया, वहां पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, वहां पे मेरा डेमो क्लियर हो गया और वहां पे मेरी जॉब सिक्योर हो गई. अब मैंने वहां पे 1 साल पढ़ाया और फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे 6 मंथ्स पढ़ाया और उसके बाद किसी वजह से वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया या वो उस इंस्टीट्यूट में मेरा क्लैश हो गया और मैंने वो छोड़ दिया. तो फिर मैं वहीं से जीरो पे आके खड़ी हो जाऊंगी, फिर दूसरी जगह जाने के लिए फिर मेरा लक काम आएगा और फिर मेरे पास डिग्री नहीं होगी, तो मैं फिर से जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाऊंगी.
हो सकता है एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे प्रेप नहीं प्राइमरी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो मेरा डिमोशन ही रहा होगा। तो लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें, तो लॉन्ग टर्म अगर हमें फाइनेंशियली स्टेबल रहना है तो उसके लिए हमारे पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज आ जाती है वो है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बात करूं, इंडस्ट्री डजंट काउंट ओनली इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अगर मैं किसी बैंक वगैरह की भी बात करूं, या मैं किसी स्कूल की भी बात करूं, मैं किसी इंस्टीट्यूट की भी बात करूं, कहीं पर भी अगर मैं जाती हूँ और मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ, तो वहां पे दो क्राइटेरिया होते हैं प्रमोशन के। नंबर वन एक्सपीरियंस एंड नंबर टू इज डिग्री। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम वर्किंग राइट नाउ एट डायमेंशन ऑफिस, अगर कल को इंशाल्लाह मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड इफ आई गो टुवर्ड्स यूनिलीवर with my bachelor's degree and 10 years of experience, and some other person goes there with his PhD degree and with 5 years of experience or 7 years of experience, they'll definitely consider the second one. Why? Because जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ उसके लिए एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो पूरा होना जरूरी है। तो आप अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको किसी भी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो करना है, प्रमोट होना है, तो उसके लिए भी आपको साथ साथ अपनी डिग्रीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा विद विद द एडिशन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप उस इंडस्ट्री में गेन कर रहे हैं, बट अगर आपको और प्रमोशन चाहिए, आपको आगे किसी और एक डेजिग्नेशन पे, रोल पे जाके फिट होना है, नॉट विद इन दैट इंडस्ट्री बट इफ आई टॉक ग्लोबली, और अगर उस इंडस्ट्री से बाहर निकल के मैं बात करूं, तो आपको अपनी मेंटेन डिग्री चाहिए होगी, आपको उससे मजीद अच्छी डिग्री चाहिए होगी ताकि आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़े। तो डिग्री हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बट अब अगर मैं चलूं स्किल्स की तरफ, तो हमारे पास स्किल्स से क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री सीखी है, सॉरी स्किल्स सीखी है, तो उसमें मुझे साथ में सर्टिफिकेट भी मिला है। आई डू नॉट हैव एनी डिग्री बट मुझे उसमें साथ में सर्टिफिकेट भी मिला है, मैंने एक स्किल सीख ली। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग की मैंने स्किल सीखी है, बट आई डू नॉट हैव एनी प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ दैट। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। देन बट स्टिल वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स जो मैंने सीखी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाउ आई कैन डू द एंटरप्रेन्योरशिप विद दैट। मतलब इफ आई हैव एनी स्किल्स, आई कैन गो इनटू द बिजनेस थिंग। मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ जो कल उस इंडस्ट्री से भी बड़ा ग्रो कर सकता है जहां पे मैं अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ अभी। सो अगर आपके पास कोई स्किल्स है बट आपके पास डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल्स आपकी बेकार है। सबसे जो बेस्ट चीज आप उससे कर सकते हैं वो आप उससे अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि आगे चल के इंशाल्लाह बहुत ग्रो भी हो सकता है। और वहां पे आपको अपनी डिग्री किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द वन हु ओन्स द बिजनेस, राइट। तो इफ यू से कि नहीं, बिजनेस की साइड पे नहीं मूव करना, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रोथ होती है। इफ आई से कि माइक, थैंक यू। मतलब इफ आई से कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत, या मैंने कोई स्किल सीखी है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, आप में से बहुत से लोगों को वेब डिजाइनिंग आती होगी, वेब डेवलपमेंट आती होगी, किसी को कंटेंट राइटिंग का शौक होगा, किसी को आर्ट का शौक होगा, किसी कोई बहुत आर्टिस्टिक किस्म का पर्सन है तो उसको पेंटिंग वगैरह का शौक होगा, स्केच वगैरह का शौक होगा। तो इन सारी चीजों से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, मतलब आप अप टू डेट चलते हैं विद द वर्ल्ड। आप एक मोनोटोनस या आप एक 9 to 6 वाली जॉब में फंसे नहीं रहते, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं उन स्किल्स को अगर आप एक्वायर कर लें। मतलब एक चीज आप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अभी मैं इस चीज पे जा ही नहीं रही कि आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि आप अपनी स्किल्स सीख रहे हैं। तो अगर आप कोई अपनी ऐसी स्किल सीख रहे हैं जो आपको अभी नहीं पता कि आप आगे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज आप जो जॉब कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू हैव टू अर्न, यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट जो स्किल्स आप गेन कर रहे हैं वो आप इसलिए गेन कर रहे हैं ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती रहे प्रोफेशनल जर्नी के अलावा। इसके अलावा आपको स्किल्स से बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। मतलब स्किल्स एक ऐसी चीज है,
आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, वो तो आपकी एक फिक्स सैलरी है, वो आपकी आती रहेगी, आपको उसको प्रमोशन मिलेंगे, आपको उसमें आप जॉब स्विच करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई साइड स्किल सीख ली तो आपको अर्निंग की और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। नहीं मिली तो आपकी पर्सनल ग्रोथ, अगर आपको मिल गई तो ये तो मतलब वो वाली बात हो गई ना कि ये चीज तो फिक्स है, लेकिन हो सकता है ये भी मिल जाए। और अगर नहीं भी मिली तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी पर्सनल ग्रोथ तो हो ही रही है। तो इस तरीके से आपके लिए स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कमाने के पर्सपेक्टिव से नहीं भी सोच रहे तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं, अपनी एज अ हॉबी उसको सोच सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ माइंड है तो आप अपनी स्किल सीख कर, आपको ये भी नहीं होगा कि पता नहीं बिजनेस चले ना चले, नहीं भी चल रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास एक साइड में आपकी डिग्री के साथ जो जॉब चल रही है वो तो आपकी चल ही रही है। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट वाई बोथ। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको ये सोचना होता है कि मैं ये दोनों चीजें कर लूं। आप अभी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, या आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया बट यू आर नॉट हैप्पी विद द डिग्री, आपके मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर, अभी आप फॉर एग्जाम्पल अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विच डिग्री यू शुड परसू। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं जब इंटरमीडिएट में थी और मेरा इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर खत्म हो रहा था और अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, आई गेव टेस्ट इन एनईडी यूनिवर्सिटी, आई गॉट सिलेक्टेड देयर। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी डिग्री चूज, मतलब कौन सी डिग्री चूज करूं। देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, और फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की तरफ। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को मैंने परस्यू किया। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर जब मुझे पता चला कि मेरी एक दोस्त है वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है। मैं उसके साथ बैठी तो मैंने बोला कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री फालतू में ले ली, ये तो बहुत मोनोटोनस का किस्म का काम है, 9 to 6 जाना है और इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर में रहना है, इतनी गर्मी होगी, ये सब होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में मजा भी बहुत आ रहा है, कलर्स के साथ प्ले कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन और उसमें सिंपल अपने लैपटॉप पे बैठ के मुझे काम करना है। तो मुझे इस चीज, काश मैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ना परस्यू करती, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग ही परस्यू कर लेती। तो मुझे बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस आ रही है मेरे दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं। इस टाइम पे आप दोनों चीजें कर सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि व्हाट डू आई डू आफ्टर गोइंग होम। मैं अगर यूनिवर्सिटी से 6 बजे घर जा रही हूँ तो उसके बाद 6 बजे से 11:30 बजे तक बिफोर आई स्लीप मैं क्या करती हूँ। ओके, मैं 2 घंटे में रेस्ट कर लेती हूँ, 1 घंटे मैं उसमें से फैमिली को टाइम दे देती हूँ, खाना पीना कर लेती हूँ, बट जो 1 1.5 घंटा बचा, जो बाकी टाइम बचा, मैं उसमें क्या कर रही हूँ? आई एम डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव एंड आई हैव स्टार्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम कि आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं क्यों नहीं सीख रही? हाँ, हो सकता है मैं अगर प्रोफेशनल डिग्री लेती तो मैं 3 महीने में सीख जाती, ऐसे अगर मैं सीखूंगी तो मुझे 6 मंथ्स लगेंगे, लेकिन अभी भी तो मैं सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ। सो वाई नॉट परस्यूइंग द थिंग दैट आई एम लाइकिंग। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर ली है तो अब मुझसे नहीं डिसाइड हो रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने वो ले लिया है, मुझे वो भी पसंद आ रहा है लेकिन मुझे साथ में ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसके बजाय कि मैं बैठ के रिग्रेट करूं, वी शुड थिंक कि थोड़ा थोड़ा करके ही सीखें, लेकिन जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को प्रोडक्टिव बना लें। नहीं भी सीख पाए तो कोई मसला नहीं है, एक चीज तो हम फॉलो कर ही रहे हैं ना। जस्ट कीप दिस थॉट इन योर माइंड एंड स्टार्ट लर्निंग। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैंने वो चीज सीखी है, तो मैंने देखा कि कहीं पे कोई कोर्सेज वगैरह आए हुए, कोर्सेज तो बहुत आए हुए थे, किसी की 10,000 फीस थी, किसी की 15,000 फीस थी। मैंने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं करना। मतलब मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं उसकी भी फीस दूं, फिर मुझे कोई दूसरी चीज पसंद आ गई मैं उसकी भी फीस दूं, कल को मुझे कोई तीसरी चीज पसंद आ जाएगी मैं उसकी भी फीस दूंगी, तो ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आगे पता नहीं मैं उससे उसको यूटिलाइज कर पाऊं, उससे जितना मैंने उस पर पैसे लगाए वो वापस ले पाऊं या ना ले पाऊं। देन आई डिड more research and I got to know about the program that was offering scholarships. I applied on that, I got selected on that, और फिर मैंने वो स्किल सीखी, मैंने वो कोर्स कर लिया। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। मैंने देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत सिमिलर है डिजिटल मार्केटिंग, अब मुझे ये सीखनी है। मैंने बहुत रिसर्च किया, कहीं पे मुझे कोई फ्री कोर्स नहीं मिला, फिर भी मैं बैठ नहीं गई। फिर हमें क्या करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? हमें ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए। फिर मैं गई ऑल्टरनेटिव की तरफ। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर तरीके के टॉपिक पे हर चीज मौजूद है। मैंने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट ढूंढ के निकाली और मैंने बोला कंसिस्टेंसी से समझ के ये करना है कि एक कोर्स कर रही हूँ,
क्लास मिस कर दी तो फिर वो चीज दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। रोज 1 घंटा देखनी है वीडियो, रोज 1 घंटा वीडियो देखनी है। कोई अपने माइंड में बिठा के 4 महीने में डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली। तो अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप सब करें। आप जो एक चीज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है लॉन्ग टर्म, जो आपकी डिग्री है, उस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करें। बाकी जो आपको टाइम बच रहा है उस पर सारी चीजें एक साथ नहीं शुरू हो जाए। जो आपको 4-5 चीजें और करनी है, एक एक करके वो सारी चीजें करें। अगर आप नहीं भी उसको यूटिलाइज कर पाए, उससे नहीं भी अर्न कर पाए, तो एटलीस्ट आपके दिल में ये होगा, आपको ये इनर सेटिस्फेक्शन होगी कि यस आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस। मुझे ये इन इन चीजों में इंटरेस्ट था, मैंने वो सब कर लिया।